नरेंद्र भाई मोदी स्वागतम। এতক্ষণ ধরে আপনারা অধীর আগ্রহে যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, ভারতবর্ষের বিকাশ পুরুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়। मंचे उपविष्ट भारतवर्षेर माननीय प्रधानमंत्री तथा विश्वेर जनप्रियतम नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सुरेश पुजारी, माननीय महेंद्र जी, आमादेर प्रदेशेर दुई साधारण सम्पादक माननीय प्रताप दा, सहसभापति जयप्रकाश दा, আমাদের তিনজন জেলা প্রেসিডেন্ট হাওড়া হুগলি এবং হাওড়া গ্রামীণের এবং প্রদেশ জেলা বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাগণ, সমস্ত প্রার্থীগণ, স্থানীয় সুধী নাগরিকবৃন্দ, মা ও বোনেরা, পশ্চিমবাংলার এবারে সাধারণ নির্বাচন উত্তেজনার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বাংলা রাজনীতি টগবগ করে ফুটছে, কিন্তু যেখান থেকে নির্বাচন শুরু হয়েছিল আজ 15-20 দিন পরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম শান্তিতে এবারে নির্বাচন হবে, কিন্তু বন্ধুগণ আমাদের ধারণা ভুল হয়েছে। আমাদেরকে কেউ প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি। আমরা পেছনের সারিতে 4 নম্বর স্থানে ছিলাম। যারা অনেক আগের থেকে রাস্তায় নেমেছিলেন, ময়দানে নেমেছিলেন, প্রার্থী ঘোষণা করে প্রচার শুরু করেছিলেন, তারা আস্তে আস্তে পিছতে শুরু করেছেন আর ভারতীয় জনতা পার্টি পেছন থেকে সামনের দিকে যেতে শুরু করেছে। আমরা চতুর্থ থেকে তৃতীয়, দ্বিতীয়, এখন প্রথমের দিকে ছুটছি। কিন্তু যারা লম্পঝম্প করে শুরু করেছিলেন তারা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। আর বিজেপির অগ্রগতিকে রুখতে না পেরে বিজেপির কর্মী নেতাদেরকে আক্রমণ করছেন। কয়েকদিন আগে জাঙ্গিপাড়াতে আমাদের কর্মীকে মারা হয়েছে, গতকাল বালিতে মারা হয়েছে। আমি আপনাদের বলে দিই, আমাদের খুবই আদরের ভালোবাসার পাত্র বাবুল সুপ্রিয় আজকে কলকাতায় ভোট দিতে গেছিলেন, সেখানে তার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি অপমান করা হয়েছে তাকে। এটা থেকে বন্ধুগণ বোঝা যায় ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বাকিরা ভয় পেয়েছেন। বিজেপির যে বিজয় রথ তাকে রাজনৈতিকভাবে আটকাতে না পেরে তার সঙ্গে হিংসার আশ্রয় নিয়ে, ভয়ের আশ্রয় নিয়ে, অত্যাচারের আশ্রয় নিয়ে আটকাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে এত তাড়াতাড়ি ভয় দেখানো চলবে না, ভয় দেখানো যাবে না। বন্ধুগণ, পশ্চিমবাংলা নূতন কিছু চাইছে। আমরা সেই নূতন কিছু দেওয়ার জন্য লড়াই করছি, পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করছি, পশ্চিমবঙ্গকে এই নরক থেকে তোলার জন্য লড়াই করছি। তাই মানুষ আমাদের কাছে ধীরে ধীরে আসছেন। আপনাদের মধ্যে যে উৎসাহ উন্মাদনা, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে বিজেপি আজকে বাংলা একটি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাংলার মানুষ তাকে স্বীকার করেছে। তাই বন্ধুগণ, আমি বেশি লম্বা কিছু বলবো না। যার ভাষণ শোনার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে বসে আছি, মাননীয় নরেন্দ্র মোদী আমাদের সামনে উপস্থিত, তিনি বক্তব্য রাখবেন। আমি দুটি কথা খালি বাংলার লোককে বলতে চাই। পশ্চিম বাংলার লোক দুটো জিনিসকে ঘৃণা করত। প্রথম হচ্ছে মহিলাদেরকে যারা অসম্মান করে তাদেরকে, এবং যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে। তাই বাংলা এই দুটোকে দূরে রেখেছিল। দুর্ভাগ্যবশত আজকে পশ্চিম বাংলা মহিলাদের উপর অসম্মান অত্যাচারে ভারতবর্ষে 1 নম্বর হয়েছে, এবং দুর্নীতিতেও আজকে বাংলার রাজনীতি পাঁকে ঢুকে গেছে, গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। তাই এই পশ্চিম বাংলার সম্মানকে উদ্ধার করার জন্য, পশ্চিম বাংলার রাজনীতিকে কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য এখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন দরকার আছে।
মা বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্য এবং বাংলার রাজনীতিকে দুর্নীতির কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি লড়াই করছে। আমি সবাইকে বলতে চাই, একবার আপনারা বিজেপিকে সুযোগ দিন। বিজেপির প্রার্থীদেরকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী করুন। আমরা যদি পশ্চিমবাংলায় সরকার করতে পারি, আমি কথা দিচ্ছি বাংলার মানুষকে, আমাদের বাড়ির মা বোনেরা বাইরে গেলে বাড়িতে উদ্বেগের সঙ্গে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বসে থাকতে হবে না। তারা সম্মানের সঙ্গে সমাজে ঘুরে বেড়াতে পারবেন এবং পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে যে কলুষতা এসেছে, যে কলঙ্ক এসছে, দুর্নীতি এসছে, তাকে আমরাই মুক্ত করতে পারি। কারণ সারা ভারতবর্ষে 1300-এর বেশি এমএলএ, 284 এমপি, হাজার হাজার নেতা বিজেপির কাজ করছেন। কারো হিম্মত নেই তাদের দিকে আঙুল তুলে একটা দোষ দেয়। সেই ভারতীয় জনতা পার্টি দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি, পশ্চিমবাংলাকে আমরা উদ্ধার করব, পশ্চিমবাংলার রাজনীতিকে উদ্ধার করব, পশ্চিমবাংলার সম্মানকে উদ্ধার করব, পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলা তৈরি করব। এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম। এখন আমরা ভারতবর্ষের বিকাশ পুরুষ এবং সারা পৃথিবীর জনপ্রিয় নেতা, তাকে আমরা পুষ্প গুচ্ছ দিয়ে বরণ করে নেব। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ফুলের মালা দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেবেন। বন্ধুগণ, আমরা যার জন্য এতক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, আমাদের সেই খুবই আপনজন, নিজের জন, যিনি নূতন স্লোগান দিয়ে ভারতকে মাতিয়েছেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, যিনি সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের মাথা উন্নত করেছেন, যাকে দেখলে সারা ভারতবর্ষে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকা ভারত মাতা কি জয় স্লোগান হচ্ছে, সেই আমাদের ভারতের নয়নের মণি, বিশ্ববিখ্যাত নেতা নরেন্দ্র মোদী আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু আমি তার আগে তাকে আরেক নরেন্দ্রর একটি মূর্তি দিয়ে সম্মানিত করতে চাই, স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি ভেট করতে চাই। भारत माता की আমি মাননীয় মোদীজিকে তার আশীর্বচন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা মন দিয়ে বক্তব্য শুনুন। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी, बंगाल का गौरव श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष, उपाध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश मजूमदार, प्रदेश महासचिव श्रीमान प्रताप बैनर्जी, हावड़ा उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार और जुझारू नेता बहन रूपा गांगुली, हावड़ा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्रीमान अनूप मलिक, हुगली के जिलाध्यक्ष श्रीमान भास्कर भट्टाचार्य,
युवा मोर्चा के अध्यक्ष तुषार कांति घोष, प्रदेश सचिव श्रीमान राजू बनर्जी, श्रीमान देवांचल चटर्जी, हावड़ा मध्य से भाजपा के उम्मीदवार और जनता की सेवा के लिए जाना पहचाना एक नाम, ऐसे हमारे नौजवान साथी श्रीमान संजय सिंह, विशाल संख्या में पधारे हुए हावड़ा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। गंगार एक पारे कोलकाता और एक पारे हावड़ा, बांग्लार गौरव हावड़ा, छोटो शिल्पे केंद्र हावड़ा, हावड़ावासी देर आमार शुभेच्छा ओ भालोबासा जानाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक और चुनाव का दौर समाप्त हुआ। हिंदुस्तान भर में जब चुनाव समाप्त होते हैं तो खबरें आती हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव पूर्ण हुआ, लेकिन यहां तीनों चुनाव के दौर के बाद खबरें आती हैं कितनों को मारा गया, कितनों को पीटा गया, कितने बूथ लूटे गए। ये सब क्या है? ये घटनाएं उस बात का सबूत है कि दीदी ने पराजय स्वीकार कर लिया है। और जब पराजय दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो मरता क्या न करता। लेकिन दीदी, अब बंगाल की जनता आपको भली भांति पहचान गई है। जिस परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता ने आपको जी भर करके समर्थन किया, जी भर करके समर्थन किया, वो परिवर्तन आप में देख करके इतनी गुस्साई हुई है, इतनी गुस्साई हुई है कि अब चुन चुन करके साफ कर देगी उन लोगों को जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। एक जमाना था, ये हावड़ा न सिर्फ बंगाल की आर्थिक गतिविधि का इंजन था, यहां की गतिविधि हिंदुस्तान की आर्थिक ताकत बनी हुई थी। एक जमाना था कि यहां के हेरिटेज बिल्डिंग पूरे बंगाल की शानो शौकत हुआ करती थी। एक वो भी दिन था जब बंगाल की हर कलम, बंगाल में फैलने वाला, हिंदुस्तान में पहुंचने वाला हर विचार, हर चिंतक, हर लेखक, हर कवि यही हावड़ा की भूमि पर रहते थे और साहित्य कला की साधना करते थे। और कभी यहां का मजदूर जूट के कारखाने से
गरीब किसानों की ताकत बना हुआ था। क्या कारण है? ये सब का सब तबाह हो गया। 15वीं शताब्दी में जाएंगे तो जहां हिंदुस्तान का जिक्र आता है, वहां हावड़ा का जिक्र 15वीं शताब्दी में भी देखने को मिलता है। क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो हावड़ा कभी बंगाल को नहीं, देश के नौजवानों को रोजगार देता था, उस हावड़ा का नौजवान रोजी रोटी के लिए मुंबई की झुपड़पट्टी में जाने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? भाइयों बहनों, कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने बंगाल को, यहां की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया है और इसलिए वो मानते हैं कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो सत्ता का उपयोग, दुरुपयोग कुछ भी करके हम सत्ता पर चिपके रहेंगे और 5 साल तक उस तिकड़म को करते रहेंगे ताकि अगले चुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाए। भाइयों बहनों, देश ने कभी ऐसा बंगाल नहीं सोचा था। देश ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि मेरे बंगाल की ऐसी भी बर्बादी अपनों ही लोगों के हाथों से हो सकती है। और इस चुनाव के मैदान में जो भी दल है, बंगाल के लोग बुद्धिमान हैं, बंगाल के लोग सोचने वाले लोग हैं। हर चीज की बारीकी से एनालिसिस करना बंगाल के लोगों का स्वभाव है। ये बात सही है कि ज्यादातर बंगाली मन पर बंगाली दिल हावी हो जाता है। बुद्धि से ज्यादा हृदय प्रभावी रहता है, भावुकता रहती है, इमोशंस का बल रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल के बुद्धिजन, 4 राजनीतिक दल यहां मैदान में है। मैं पॉलिटिकल पंडितों से आह्वान करता हूं कि इन 4 राजनीतिक दलों का जरा लेखा जोखा लें। किस दल का क्या चरित्र है, कौन दल किस प्रकार से काम करता रहा है, किस दल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किस दल ने देश को क्या दिया है। चारों दलों को जरा तराजू पर तोल करके देखा जाए। इस देश ने सालों तक कांग्रेस के शासन को देखा है। इस देश ने लेफ्ट की सरकारों को भी देखा है। इस देश ने
प्रादेशिक पक्षों की भी सरकार देखी है। इस देश ने परिवार आधारित, जाति आधारित दल भी देखे हैं और इस देश ने आदर्शों और सिद्धांतों पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है, परखा है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को, उनके कार्यकलापों को, उनके कार्यक्रमों को बारीकी से तराजू पर तोला जाए। क्या कारण है? इतने साल कांग्रेस की सरकारें रही और एक बार देश की जनता कांग्रेस को हटाती है और कांग्रेस को हटाने के लिए किसी को भी लाने के लिए तैयार हो जाती है। कोई भी मिल जाए वो मंजूर, लेकिन कांग्रेस मंजूर नहीं। और इतिहास कहता है कि हिंदुस्तान में जिस कोने से कांग्रेस गई 25-25, 30-30 साल तक कभी वापस नहीं आई है। जनता का इतना गुस्सा होता है इनके प्रति कि थोड़ा सा भी कोई मौका मिल जाए तो कांग्रेस वहां कभी लौट करके नहीं आती है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, बंगाल से कांग्रेस गई, 4-4 दशक हो गई, बंगाल के लोग उनको वापस घुसने नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, बिहार का हाल देखिए, उड़ीसा का हाल देखिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए। कांग्रेस एक बार जाती है, देश की जनता उन पर इतना गुस्सा करती है कि कभी वापस नहीं आने देती। क्या कारण है? कि एक वक्त था 440 सांसदों के साथ संसद में जो लोग बैठते थे और भारतीय जनता पार्टी 2 या 3 बस करके उसका मजाक उड़ाया जाता था, वो दल अपने अहंकार के कारण आज 40 पर आकर के सिमट गया और संसद के एक कोने में नजर नहीं आता। आज देश की जितनी समस्याएं हैं, अगर गरीबी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, अव्यवस्था है, क्या अंग्रेजों ने विरासत में यह दिया था क्या? अरे जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ा था तब बंगाल देश का नेतृत्व करता था। आपने जब देश बंगाल संभाला, आपने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। लेफ्ट वालों को जहां भी सेवा करने का मौका मिला, क्या किया? आधुनिकता का विरोध, कंप्यूटराइजेशन का विरोध, अंग्रेजी का विरोध, उद्योगों का विरोध, चुनाव जीतने के लिए असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना, रोड बने या न बने, स्कूल खुले या न खुले, अस्पताल हो या न हो, डॉक्टर मिले या न मिले, लोग मरे तो मरे लेकिन राजनीति चलती रहे, यही कारोबार लेफ्ट वालों ने किया। चौंतीस साल तक किसी को सरकार चलाने का मौका मिले, वो पश्चिम बंगाल को कहां से कहां तक ले जा सकते थे। लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने भी वो मॉडल नहीं दिया जो बंगाल का भला कर सके। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने प्रादेशिक दलों को भी देखा है और एक भारतीय जनता पार्टी देखिए, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए हमारा। बहुत पहले हमें मध्य प्रदेश में सेवा करने का मौका मिला था और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विजयी होती रही। एक जमाना था
जब इस देश को कुछ राज्यों को लेकर के बीमारू की परिभाषा में रखा गया था। इस बीमारू की परिभाषा में मध्य प्रदेश का भी नाम था। एम जो था वो मध्य प्रदेश का था। क्या कारण है कि कांग्रेस की सल्तनत के समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन गया और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, आज वो राज्य बीमारू से बाहर आ गया, कृषि क्षेत्र में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंच गया। गुजरात को सेवा करने का मौका मिला। विकास के मॉडल के रूप में, विकास के नई ऊंचाइयों के रूप में देश में गुजरात जाने लगा। अगर राजस्थान में सेवा करने का मौका मिला, छत्तीसगढ़, झारखंड, नक्सलवाद का प्रभाव, माओवाद का प्रभाव, हिंसा, अपराध, निर्दोषों को मौत के घाट उतारना, यही वहां का खेल खेलता था। विकास का नामो निशान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जी भर करके प्यार दिया। आज छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहां अधिकतम ट्राइबल जनसंख्या है, आज विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाहता हूं, मैं बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, और हावड़ा बुद्धिजीवियों का एक इलाका है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सोचिए, ये जितने राजनीतिक दल हैं, इसमें विकास को समर्पित कोई दल है तो उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं बंगाल के लोगों से विकास के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। हमारे जुझारू साथियों को विजयी बनाने के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आया। मैं हैरान हूं, भारत सरकार या ईस्ट वेस्ट मेट्रो के लिए प्रपोजल करे, पैसा देने के लिए तैयार हो, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण मेट्रो के प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? ऐसे लोगों को माफ करोगे? पिछले अगस्त महीने में बाढ़ आई। बाढ़ के समय यहां की सरकार का काम था कि हावड़ा के लोगों को मदद पहुंचाए। सरकार ने कुछ किया नहीं, और जब बहन रूपा गांगुली हावड़ा के लोगों की मदद के लिए सामान लेकर के जा रही है तो उस पर हमले किए जा रहे। क्या यह मानवता है? क्या गरीबों को दुख में मदद करना, क्या उसमें भी राजनीति करोगे? भाइयों बहनों, ऐसा राजनीतिक कल्चर बंगाल के जीवन को तबाह कर चुका है। और इसलिए लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होती है। आपके सपनों को साकार करने के लिए निर्णय करने का आपके हाथ में होता है। ज्योतिषियों के लिए आपका भाग्य आपके हथेली में होगा, लेकिन लोकतंत्र में देश का भाग्य आपकी उंगली में होता है। किस बटन पर उंगली दबाते हो, उसके आधार पर भविष्य तय होता है। और इसलिए मैं आज हावड़ा की जनता के पास विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया। जो गरीबों की बातें करते हैं। पूरे बंगाल में शारदा चिटफंड में सबसे ज्यादा पैसे किसके गए? सबसे ज्यादा पैसे किसके डूब गए?
गरीबों के डूबे, और वो भी हावड़ा के इलाके के गरीबों के डूबे। ये शारदा चिटफंड वाले कौन थे भाई? उनका नाता किस राजनीतिक दल के साथ था? किस दल के नेता शारदा चिटफंड के साथ चिपके हुए थे? और जो जेल में गए वो बयान देके कहते हैं कि किसके घर में मीटिंग हुई थी, कब मीटिंग हुई थी और पैसे कहां रखने का तय हुआ था, ये सारी बातें बताते हैं। जिन्होंने गरीबों के पैसों को लूट लिया, भरोसा देकर के लूट लिया, सपने दिखाए, इतने पैसे रखो, इतने साल में इतने हो जाएंगे, आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी के समय रुपया आ जाएगा। अभी पैसे यहां रख दो, जब मकान बनाना होगा इतने रुपये मिल जाएंगे। अभी पैसे हमारे यहां दे दो, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा मिल जाएगा। गरीब ने, बेचारे ने रुपये पैसे नहीं, अपनी जिंदगी के सारे सपने शारदा चिटफंड में जमा करवा दिए थे। और आप लोगों ने उन शारदा चिटफंड के माध्यम से उन गरीबों के पैसों को लूट लिया। गरीबों की बातें करने वाले लोगों को यह हक नहीं बनता है, यह हक नहीं बनता है उनको। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल में एक पीड़ा होती है कि मेरे बंगाल के गरीबों का ये हाल करने वाले लोगों को एक पल सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं होता है। भाइयों बहनों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब की जिंदगी रौंदने का अधिकार किसी को नहीं मिलता है। यहां विवेकानंद ब्रिज टूट गया, ये किस बात का सबूत है? ये ब्रिज टूट गया किस बात का सबूत है दोस्तों? ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार की साक्ष्य बन के टूटा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? इसने निर्दोषों की जान ली है कि नहीं ली है? अगर एक निर्दोष की जान चली जाए तो अदालत जिंदगी भर की जेल दे देती है। आपके इन कुकृत्यों ने इतने लोगों की जान, जिन्होंने शुरू किया वे भी जिम्मेवार, और जिन्होंने पूरा करने का प्रयास किया वो भी उतने ही जिम्मेवार है। दोनों जिम्मेवार हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, और जो चेहरे शारदा में दिखते हैं वही चेहरे नारदा में दिखते हैं। जो चेहरे नारदा में दिखते हैं वही चेहरे विवेकानंद ब्रिज के हादसा में दिखते हैं। शारदा हो, नारदा हो या भयंकर हादसा हो, ये यही चक्के बक्के के लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के साथ खेला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, और मैं तो हैरान हूं दीदी, मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है कि हम तो पहले सैकड़ों मील गुजरात में जब हुआ करते थे, राजनीति में हम कुछ नहीं थे, हम तो एक सिपाही की तरह, कार्यकर्ता की तरह काम करते थे। लेकिन अखबार में जब दीदी संघर्ष कर रही हैं देखते थे, पुलिसों से जूझ रही है देखते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ, एक कोई महिला है जो कुछ करना चाहती है। जब भ्रष्टाचार की बात आती थी तो दीदी जिस प्रकार से उछल पड़ती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कुर्सी तक फेंक देती थी। दीदी ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया?
टीवी के कैमरा के सामने टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था। ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। दुनिया भर के उपदेश सुनाना, पूरी संसद को सलाह देना और जेब में रुपये देना। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा। तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये मिल बांट करके खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं। भाइयों बहनों, ये रुपये किसके हैं? ये जनता जनार्दन के है कि नहीं है? ये पैसे आपके पसीने के है कि नहीं है? ये पैसे आपके सपनों के लिए है कि नहीं है? ये आपके पैसों को जिन्होंने चुराया वे गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में सजा करोगे कि नहीं करोगे? ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो कि आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत ना हो कि किसी से रुपये लेकर के ऐसे ब्रिज बनाए ताकि लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का पाप हो जाए। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि देश के नौजवान को रोजगार मिले और इसलिए हम स्किल इंडिया का कार्यक्रम चला रहे हैं, मुद्रा बैंक की योजना चला रहे हैं। देखिए फर्क कितना है, दो सरकारों के चिंतन में फर्क कितना है, दो राजनीतिक दलों की चिंतन में कितना अंतर है। उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं। बैंकों के दरवाजे बंद रहे 60 साल तक और तब गरीब को जाना पड़ा शारदा चिटफंड में और उसको रोने की नौबत आई। एक हम है जिन्होंने गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए और प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब कहा गया था कि गरीबों के लिए बैंक होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने शपथ लिया उस दिन तक इस देश के 40% लोग जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। हमने बीड़ा उठाया कि गरीब से गरीब का बैंक में खाता खोल देंगे। खोला, 2 लाख रुपए का बीमा दिया और जिसका जनधन अकाउंट था उसके परिवार में कोई आपत्ति आई तो हफ्ते के भीतर भीतर 2 लाख रुपए का चेक पहुंच गया। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई। हमारा गरीब कपड़े बेचता हो, बर्तन बेचता हो, अखबार बेचता हो, नाई हो, कुम्हार हो, खिलौने बनाने वाला हो, मिठाई बनाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, पकोड़े बेचने वाला हो, उसको अगर पैसों की जरूरत पड़े, 5,000 रुपए की भी जरूरत पड़े तो उसे साहूकार के पास जाना पड़ता था। मेहनत करके पेट भरने वाले इंसान को, चाहे ऑटो रिक्शा चलाता हो, टैक्सी चलाता हो,
बैंकों में खाते नहीं खुलते थे, बैंक उसको पैसे देने को तैयार नहीं थे। बड़े बड़े धन वाले बैंकों को लूट करके भाग जाए, उसकी तो चिंता नहीं थी, लेकिन एक गरीब पैसे मांगे तो बैंक के दरवाजे बंद रहा करते थे। हमने मुद्रा योजना लाई और बिना गारंटी ये छोटे छोटे काम करने वाले लोग अगर बैंक से लोन मांगते हैं तो मेरी सरकार ने बैंक से लोन देने का दरवाजा खोल दिया। उसे साहूकार के यहां जाना बंद हो गया, ब्याज के चक्कर में वो मर रहा था, मरना बंद हो गया, साहूकार से मुक्त हो गया। और भाइयों बहनों, इतने कम समय में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को 1.25 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा रुपये हमने दे दिए। और वो आज खुद का तो रोजगार चलाता है, एक आध नौजवान को रोजी रोटी भी देता है। आपके लिए मॉडल है शारदा चिट फंड, हमारे लिए मॉडल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो गरीब से गरीब को पैसे सरकार देती है और ब्याज के चक्कर से मुक्ति दिलाती है। आप किस मुंह से गरीबों की बात करते हो? भाइयों बहनों, हमारे देश में नौजवान रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पता है। कितनी पढ़ाई क्यों न की हो, अगर ड्राइवर के नाते भी जॉब मिल जाए, प्यून के नाते जॉब मिल जाए, क्लेरिकल जॉब मिल जाए, तो वो अपना सौभाग्य मानता है। और सरकार में नौकरी पाने के लिए बेचारा एग्जाम देता रहता है, फॉर्म भरता रहता है, फॉर्म की फी भरता रहता है। और अगर इंटरव्यू का कॉल आ गया तो उसको ये चिंता नहीं होती है कि इंटरव्यू के लिए कब जाना है, कहां जाना है, टिकट निकालनी है। उसको ये चिंता रहती है, वो सोचता है, हर किसी को पूछता है कि मेरा इसमें इंटरव्यू आया है, किसकी सिफारिश काम आएगी, कौन मुझे नौकरी दिलवा सकता है। और कोई आकर के मिल जाता है, वो कहता है कि तेरी नौकरी पक्की 50,000 देना पड़ेगा, तुझे इंटरव्यू में पास करा दूंगा। और हर गली मोहल्ले में ऐसे दलाल घूमते रहते हैं भाई। और गरीब बेचारा ड्राइवर की नौकरी पाने के लिए, क्लरिकल नौकरी पाने के लिए, इंटरव्यू पास करने के लिए, सिफारिश के लिए 50,000 लाख रुपया दे देता है। कभी मां के गहने गिरवी रख देता है, कभी पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है तो गिरवी रख देता है। और मां बाप चाहता है कि बेटे को कहीं नौकरी मिल जाए, एक बार नौकरी मिल जाएगी तो फिर कर्ज चुका देंगे। इंटरव्यू, तीसरे और चौथे वर्ग के इंटरव्यू के पीछे हर वर्ष देश में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का कारोबार चलता था। हमने एक निर्णय किया मेरे नौजवान साथियों, हमने कहा अब भारत सरकार में वर्ग 3 और 4 में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जिसकी जो मेरिट है कंप्यूटर तय करेगा, जिसको ज्यादा मेरिट के मार्क मिले हैं उसके घर नौकरी का ऑर्डर चला जाएगा। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती? हमने किया। अरे एक समय था गैस का सिलेंडर भी चाहिए ना तो कोटा रहता था। घर में गैस सिलेंडर का कनेक्शन चाहिए तो नेता का कुर्ता पकड़ना पड़ता था। 50 बार एमएलए एमपी के घर जाना पड़ता था कि साहब एक गैस का सिलेंडर का कनेक्शन दिलवा दो ना। और वो कहता था इतना देना पड़ेगा, या उसको मिलो वो करवा देगा। और फिर दलाल अपना निकाल देता था। क्या गरीब को गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या गैस का चूल्हा ये लग्जरी है क्या? भाइयों बहनों,
पिछले एक साल में आजादी के 70 साल होने रहे हैं। एक साल के भीतर भीतर इस देश में 1 करोड़ गरीब परिवारों को कभी भी गैस का कनेक्शन नहीं दिया गया। हमने पिछले साल दे दिया। भाइयों बहनों, जब चुनाव आता है ना, तो ये गरीब की माला जपते हैं। गरीब 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 करते रहते हैं। लेकिन उनके एक भी काम में गरीबों के जीवन में बदलाव के लिए कुछ नजर नहीं आता है। उनकी गरीबी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए होती है, गरीब को ताकतवर बनाने के लिए नहीं होती है। हमने तय किया, और आपको जानकर के दुख होगा मेरे भाइयों बहनों, जब गरीब मां अपने घर में बच्चों का पेट भरने के लिए लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, तो विज्ञान कहता है कि उस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता है। 400 सिगरेट का धुआं एक दिन में, 400 सिगरेट का धुआं अगर उस गरीब मां के शरीर में जाता है तो उसकी तबीयत का क्या हाल होता होगा, उसके बच्चों का क्या हाल होता होगा। और ऐसी मेरी करोड़ों करोड़ों माताएं बीमार हो तो मेरी भारत माता कैसे बीमारी से मुक्त हो सकती है। इसलिए हमने एक बड़ा बीड़ा उठाया है। हमने तय किया है, आज हिंदुस्तान में करीब टोटल 25 करोड़ परिवार है। उन 25 करोड़ परिवार में 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी में जीते हैं, लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं। हमने सपना देखा है, इन 5 करोड़ गरीब परिवार जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, उनको आने वाले 3 साल के अंदर अंदर गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया जाएगा और उन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई जाएगी। कौन कहता है समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, बंगाल का अगर भला करना है तो मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। उन 3 सूत्री कार्यक्रम में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा पहला सूत्र है विकास, दूसरा सूत्र है तेज गति से विकास, तीसरा सूत्र है चारों दिशाओं में विकास। माइक ठीक करो भाई। चारों दिशाओं में विकास। भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान विकास में है। बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई हो, नौजवानों के लिए अच्छी कमाई हो और बुजुर्गों के लिए अच्छी दवाई हो तो समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, ये लोग बंगाल के लोगों को समझते क्या है? मैं हैरान हूं। ये कांग्रेस वाले, लेफ्ट वाले बंगाल के लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। आप 5 साल पहले जब चुनाव हुआ, जरा कांग्रेस के नेताओं के भाषण देख लीजिए पुराने निकाल के। लेफ्ट को ऐसी गालियां दी है, लेफ्ट को ऐसी गालियां दी है और कह रहे बंगाल की बर्बादी का कोई एक जिम्मेवार है तो लेफ्ट वाले हैं। ये कांग्रेस के भाषण हैं। और इस चुनाव में देखिए परिवर्तन।
इस चुनाव में देखिए वो कांग्रेस वाले कहते हैं लेफ्ट से बढ़िया कुछ दुनिया में है ही नहीं, ये लेफ्ट वाले बड़े होनहार हैं, ये लेफ्ट वालों को गले लगाओ बहुत अच्छे हैं, लेफ्ट के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। ये किसको मूर्ख बना रहे हो? मैं लेफ्ट वालों और कांग्रेस वालों को पूछता हूं, क्या आप ये मानते हो बंगाल की जनता इन चीजों को समझती नहीं है? क्या ये मानते हो कि बंगाल की जनता दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पाती है? क्या बंगाल की जनता इस आपके परिवर्तन को नहीं समझती है क्या? और आप बंगाल के लोगों से मेरा आग्रह है कि शाम को जरा मलयालम टीवी जरा खोल करके देख लीजिए, केरल के किसी टीवी चैनल को खोल के देख लीजिए। जो लोग यहां बंगाल में कम्युनिस्टों को गले लगा के घूमते हैं और जो कम्युनिस्ट बंगाल में कांग्रेस को गले लगा के घूमते हैं, वो 500 किलोमीटर दूर केरल पहुंचते पहुंचते मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे काटूंगा, वो कहता है मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे काटूंगा। ये कौन सा चरित्र है? अगर अच्छे हैं तो वो केरल में भी अच्छे होने चाहिए, अगर बुरे हैं तो वो बंगाल में भी बुरे होने चाहिए। केरल में वो आपको बुरा लगे, बंगाल में आपको अच्छे लगे, इसका मतलब आपको कुर्सी अच्छी लगती है, बंगाल के लोगों का भविष्य अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो केरल में कुश्ती कर रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस वाले, वो बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं। ये राजनीति समझ नहीं आती है कि केरल में तो कुश्ती और बंगाल में दोस्ती। और ये टीएमसी का चरित्र देखिए, पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर सारे काम अटके पड़े हैं, देश के भविष्य से जुड़ा कोई काम करने नहीं दिया जाता है। लोकसभा में तो हमारे पास बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है, और हमें रोकने का काम कौन करते हैं? देश को रोकने का काम कौन करते हैं? देश के भविष्य को रोकने का काम कौन करते हैं? 3 लोग मिलकर के करते हैं, टीएमसी, लेफ्ट एंड कांग्रेस। पूरा देख लीजिए, यहां चुनाव लड़ रहे हो और संसद में कंधे से कंधा मिला करके भारत के भाग्य को रोकने के लिए षड्यंत्र करते हो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहने आया हूं, अरे विराट जनसागर, इतनी बड़ी मात्रा में जब आप मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, हावड़ा की इस धरती से मैं कहना चाहता हूं, बंगाल की क्रांतिकारी धरती से कहना चाहता हूं, बंगाल के संतों और ऋषियों की धरती से कहना चाहता हूं, बंगाल के विद्वानों की धरती से कहना चाहता हूं कि मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, आपने सब कुछ देख लिया है। कांग्रेस भी देखी, लेफ्ट भी देखा, टीएमसी भी देखी, एक बार हमें भी तो देख लीजिए। एक बार हमें भी तो सेवा करने का अवसर दीजिए। हम आपके सुख दुख के साथ ही रहेंगे, हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे। भाइयों बहनों, अब चुनाव अपने आखिरी दौर की ओर आगे बढ़ रहा है, और मुझे विश्वास है कि जो आपके लिए जीते मरते हैं, ऐसे हमारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, बंगाल का भविष्य बनाइए, और देश को आगे बढ़ाने में बंगाल नेतृत्व करे, ऐसा माहौल बनाइए। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। এতক্ষণ
এতক্ষণ ধরে আপনারা